Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the chapter Rocks and Minerals, part 5th, subject Science, and in this video we will discuss about fossil fuels. Dear students, we already know about rocks, types of rocks, which like igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rocks, and minerals, minerals and their types, metallic minerals and non-metallic minerals. Students, we already know about in these things. In this video, we will learn about fossil fuels like coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इस वीडियो में हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, और हमें उनको कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों है और हमें उनको कंजर्व कैसे करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर buried flammable geologic deposits of organic substances such as dead plants and animals that got deposited under square thousands feet of silt. These deposits decayed with the passage of time. It means these deposits decayed with passing times, as well as time passed and got converted to natural gas, coal and petroleum due to the extreme heat and pressure inside the earth's crust. They are also known as non-renewable sources of energy, as it takes a very long time for it to replenish. Now, types of fossil fuels. How many types fossil fuels are of the coal, petroleum and natural gas? We can discuss in these in details in this video. Coal. Coal is sedimentary rock formed from the remains of plants. It is hard. ये हार्ड होती है. कोल जो होती है वो एक सेडिमेंट्री रॉक होती है जो कि रिमेन्स प्लांट से बनती है. It is hard black colored substance made up of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur, जो कि इन सभी गैसों से बनती है. The major type of coal are anthracite, bituminous and lignite. Coal is processed industrially to obtain derivatives like coke, coal, tar and coal gas. Formation of coal. The process of formation of coal is known as qualification. वह प्रोसेस जिसमें कोल का फॉर्मेशन होता है उसे क्वालिफिकेशन कहते हैं. Millions of years ago, the dense forest present in the low-lying
wetland got buried in the earth. Soil kept depositing over them. और सॉइल जो है वो उस पे डिपॉजिट कर दी जाती, एंड दे गॉट कंप्रेस्ड, और उसको कंप्रेस किया जाता है. एज दे वेंट डीपर एंड डीपर दे फेस्ड हाई टेम्परेचर. जैसे वो डीप एंड डीप जाते हैं अर्थ में, उनको क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई मिलता है. एज ए रिजल्ट द substances slowly got converted into the coal. ये सब्सटेंस किस में चेंज होता है, धीरे धीरे स्लोली ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. यूजेस ऑफ कोल. Coal was used to produce steam in the railway engines. Initially, it is used to cook food. It is used to generate electricity in the thermal plants, and it is also used in industries as fuels. कोल जो होता है उसका बहुत सारी अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ किया जाता है. उसका रेलवे इंजन में स्टीम के रूप में, फूड बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में कोल का यूज़ किया जाता है. पेट्रोलियम. दिस इज ए क्लियर ऑयली लिक्विड यूजुअली ग्रीन और ब्लैक इन कलर. ये कैसा होता है, यह ऑयली लिक्विड जैसा लिक्विड होता है जो कि यूजुअली कैसा होता है, ग्रीन और ब्लैक कलर का. इट हैज़ ए वेरी स्ट्रेंज स्मेल एंड इज मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, डीजल, पैराफिन, वैक्स पेट्रोल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एट्सेट्रा. और यह इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें इनमें मिक्स होती है. इट इज़ ऑल्सो टर्न्ड एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन मैनी इंडस्ट्रीज. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. The marine animals and plants died and their bodies sank to the bottom of the sea. More and more sediments collected on top. यहाँ sediments क्या कलेक्ट होते जाते हैं. Their encounters with high temperature and pressure convert them into petroleum. किस में चेंज कर दिए जाते हैं, पेट्रोलियम में. द पेट्रोलियम इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल बाय ए सीरीज ऑफ प्रोसेस इन ए रिफाइनरी. दिस इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनरी. रिफाइनिंग यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग की प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको, इस सीरीज के अकॉर्डिंग इनको अलग कर लिया जाता है, पेट्रोलियम को इससे सेपरेट कर दिया जाता है. यूजेस ऑफ पेट्रोलियम. इट इज यूज्ड टू पावर इंटरनल कंबक्शन इंजन्स इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल. इट इज यूज्ड इन रूफिंग, रोड पावरमेंट्स एंड एज वाटर रिप्लीमेंट. It is used in manufacturing detergents, plastic, fibers, polythene, etc. etc. पेट्रोलियम का यूज़ जो होता है वो बहुत अलग अलग टाइप से लिया जाता है. ये रूफिंग में, रोड पावरमेंट्स में, वाटर रिप्लीमेंट में और कई अलग अलग चीज़ों को बनाने में यूज़ में लिया जाता है. डिटर्जेंट्स बनाने में, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, पॉलीथीन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में पेट्रोलियम को यूज़ लिया जाता है. नेचुरल गैस. इट इज़ ए
clean and non-toxic fossil fuels. It is colorless and odorless and can be easily transferred through pipelines. इसका कोई कलर नहीं होता है और ना ही इसकी स्मेल होती है. यह क्या होती है, साथ ही साथ नेचुरल गैस जो होती है वो इजीली ट्रांसफर्ड भी पाइपलाइंस के थ्रू इजीली ट्रांसफर्ड की जा सकती है. इट इज स्टोर्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के रूप में स्टोर की जाती है अंडर हाई प्रेशर. इट इज ए लेस पॉल्यूटिंग एंड लेस एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल्स. यह इसका पोल्यूशन भी बहुत कम होता है एंड साथ ही एक्सपेंसिव भी नहीं होती, कम होती है. मीथेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस. फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस. The phytoplankton and zooplankton sink to the bottom of the ocean and mix with the organic materials to form an organic rich mud. The mud buried under mere sediments. The mud buried under more sediments and lithe flies to form an organic shell. जिससे क्या बनती है, ऑर्गेनिक शेल. दिस प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू ऑक्सीजन. इससे क्या होता है, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सपोजर टू ऑक्सीजन. दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया. द इंक्रीजिंग प्रेशर and temperature transform the shell into a waxy material known as kerosene. At temperature between 90 to 160 degrees Celsius, kerosene is transformed into natural gas. यह नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म कर दिया हो जाता है. यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. Compressed natural gas is used for generating power. पावर जनरेट करने में नेचुरल गैस का यूज लिया जाता है. कैसे? इट इज यूज्ड एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स. फ्यूल्स के रूप में किसमें, ऑटोमोबाइल्स में. इट कैन बी यूज्ड एट होम्स फॉर कुकिंग. कुकिंग में भी लेते हैं होम में. इट इज यूज्ड एट starting material in chemicals and fertilizers. फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स में भी इसको स्टार्ट करने में, मटेरियल को स्टार्टिंग करने में यूज में लिया जाता है. नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. अब इनको नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए. कोल एंड पेट्रोलियम आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस. ये हमें नेचर ने गिफ्ट दिया. दे आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज. हाउएवर दे आर लिमिटेड. वी ऑलरेडी नो दैट petroleum and coal are natural resources, but they are limited. If we keep using them as fast as we are doing today, they will not last very long. अगर हम उनका इसी तरीके से तेज़ी से, आज से भी ज़्यादा तेज़ी से हम क्या करेंगे, उनका यूज़ करेंगे, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पेट्रोलियम डिपॉजिट्स विल लास्ट ओनली फॉर अबाउट 100 years and coal for about 250 years. So you can imagine what will happen after that. We should therefore make an effort to use less coal and petroleum. Burning so much of fuel also causes harmful substances such as smoke and poisonous gases to be released. This causes pollution.
pollution can result in dangerous diseases. This is another reason why use of coal and petroleum should be limited. An important way in which we can conserve coal and petroleum is to use other forms of energy which are non-polluting and freely available. For example, the energy of the sun is available in plenty and will never finish. जो कि हमें हमेशा मिलती रहेगी, वो कभी भी फिनिश नहीं होगी. इट ऑल्सो डज नॉट कॉज पोल्यूशन. और साथ ही साथ इससे क्या नहीं होता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है, किसी भी टाइप का कोई पोल्यूशन नहीं होता है. सन्स एनर्जी इज यूज टू कुक फूड इन ए सोलर कुकर. Special type of cells called solar cells convert the sun's energy directly into the electricity. ये जो सोलर सेल्स क्या करती है, ये सेल्स सन की जो एनर्जी होती है उसको किस में, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली चेंज करती है, कन्वर्ट कर देती है. अदर सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर unending and do not cause pollution are wind energy and the energy of flowing water. ये सब क्या करते हैं, ये सब भी हमें कोई पोल्यूशन नहीं देते और इनसे हमें एनर्जी मिलती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं. वी हैव टू डिपेंड मोर एंड मोर ऑन दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.